ایک ہی چلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الكريم محبوب رب العالمین حبیب الہ العالمین سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و شفیعنا قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين دیکھیں نماز کا وقت ہو چکا ہے اور یہ نماز کا وقت بیچ میں آیا ہے اور بہرحال اس کی بڑی آتی ہے مجبوری ہے، مگر چونکہ میں نے اگر عالموں کے مراجع بخشی دلائل اور استدلالات نہ پڑھے ہوتی تو میں مجلس پڑھنے کی اس کا فیصلہ نہیں، مگر چونکہ مراجع نظام کے دلائل اور بڑی بڑی کتابیں اس بات پر لکھی گئی ہیں کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو مجلس شروع نہ کی جائے، اور درمیان اگر مجلس نماز کا وقت آئے تو ذکر سید الشہداء مرحوم کربلا ہوتا رہے۔ لہذا یہ فضیلت ہے امام حسین صلوات اللہ علیہ کی ذکر نماز کا وقت سے بات کرتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، وہ بھی نائب امام ہوتا ہے، ایسے نائب امام ہوتا ہے۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو 5 منٹ میں 7 منٹ میں نماز پڑھ لوں، اور جب نماز کا وقت اگر بیچ میں آئے تو مجلس حسین کرو۔ کیوں مجلس کے بیچ میں مجلس مت کاٹو، اب انتظار ہوتا رہے کہ نماز کا وقت آئے گا 25 منٹ کے بعد، لہذا 25 منٹ کتنی دیر آدمی خاموش بیٹھا رہے گا، انتظار کرتا رہے گا۔ اور پھر ایک سلسلہ جلالی میں مجالس کا یہ ہے کہ ایک کے بعد مجلس امام حسین علیہ السلام مسلسل ہوتی رہتی ہے، تو کیونکہ مجلس ہوتی رہتی ہے لہذا بیچ میں وقفہ کم ہو جائے گا اور دوسرے کی مجلس میں دیر ہو جائے گی، اس لیے فقہاء نے پورے دنیا پر نظر کرتے ہوئے، انہیں یہ معلوم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ جلالی کے رہنے والے نہیں ہیں، انہیں یہ جلالی کا معلوم ہے جب آیت اللہ نے کہا کہ ایسی جگہ ہے ہندوستان میں کہ جہاں کھانے کا بھی انٹرویل نہیں ہوگا، درود پڑھے محمد علیہ بعد میں مجلسیں ہوتی ہیں تو اتنا وقت ملتا کہ انسان 20 منٹ جا کر کے آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہے، اور ہے بھی یہی کہ کیونکہ ایام اعضاء اسی لیے ہے اور محرم اسی لیے ہے کہ اب 10 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی کام نہیں، 10 دن کے بعد کیا کہا؟ یہ تو ایک سال میں 20 دن ایسے آتے ہیں جو آپ اس کام میں محب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تو پھر یہ ہے کہ کسی کی 40 منٹ کی مجلس ہو گئی، کسی کی مجلس ہو گئی، کوئی مرات اس کی مجلس ہو گئی۔ کون امام حسین علیہ السلام کو خاطر پر یاد کرتا ہے؟ کوئی مر جاتا ہے تو یاد کرتا ہے، مگر میں نے آیت اللہ کو سب کو یہی دیکھا کہ جب درس خارج ختم کر لیتا تھا ہر مرجع وقت نجف اشرف وہ 10 منٹ ضرور بتائے امام صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بیان کرتا تھا کہ آج تک کوئی دن ایسا اپنی حیات میں خالی نہیں گیا کہ جس دن ہم امام حسین علیہ السلام کو نہ روئے ہوں اور ان کا ہم نے گریہ نہیں۔
अजीजों, मजलिस हुसैन कोई मामूली चीज़ नहीं है, बड़ी अजीम चीज़ है मजलिस। साहिब आले मोहम्मद मजलिस इमाम उसका रुतबा बहुत बुलंद है। कोई बज़्म आप बता दें, कोई जगह ऐसी बता दें, मैंने अर्ज़ किया कि जहाँ पंजितन पाक शहादा मासूम अलैहिस्सलाम अंबिया अलैहिस्सलाम आते हो, ये अगर कायनात में किसी इबारत को शरफ हासिल है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस ही को हासिल है कि जहाँ मुतहर आकर के फरोकश होती है और वो तशरीफ लाते हैं। ये ज़रूर है कि आपकी मादी निगाहें जो है वो नहीं नज़ारा करती हैं, मगर उनका वजूद कतई है कि वो मजलिस अहले बैत में आते हैं। तो जिस आयत की मैंने सरनामे सुखन करार दिया, सरनामे मजलिस, उसमें अल्लाह ने फरमाया कि ऐ वो लोग जो कि ईमान ले आए, अल्लाह से डरो। और अल्लाह से डरना काफी नहीं है, बल्कि सच्चों की इत्ताअत हो जाए, सच्चों के साथ। खिताब किससे है? पहला लफ्ज़ ये है कि खिताब किससे है? या अय्युहल्लज़ीना, मुनाफिकों से कैसा खिताब हो सकता है? जरूर पढ़ेगा ऐसे ही शुरू करनी चाहिए। वो काफिरों से कहेगा, वो मुशरिकों से कहेगा, वो यहूदियों से कहेगा, वो ईसाइयों से कहेगा। अरे वो कहेगा तो आप ही से कहेगा जो ईमान ला चुके हैं। तो पहले बेस ईमान की है। मुमकिन है कि एतराज खड़ा हो के साथ क्या जरूरत थी? जब सादिकीन के साथ होना ही ईमान है तो आमनू क्यों कहा? ये अल्लाह की जिम्मेदारी थी कि उसकी गुफ्तगू साहिबान ईमान से है, मुनाफिकों से नहीं है। मुनाफिकों से तो वो बात करना ही पसंद नहीं करता, मुशरिकों से तो बात ही नहीं करना पसंद करता। वो तो साहिबान ईमान से बात करता है, इसलिए कि इनके दिल में नूरे ईमान है, और जिसके दिल में नूरे ईमान है वो अल्लाह की बात को मानेगा जरूर। ये नहीं है कि वो छोड़ दे, मानेगा जरूर। और ये हो सकता है कि किसी कमजोरी की बिना पर कभी छोड़ दे, मगर उसको तस्लीम करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ साहिबान ईमान, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने के माना क्या है? अल्लाह से डरने के माना ये है कि इंसान अल्लाह की इताअत करे, हराम काम से इज्तनाब करे, फरीज़े को अदा करे। फरीज़े को अदा करेगा, हराम से बचेगा। तो अल्लाह ने कहा कि पहले मंजिल ये है कि अल्लाह से डरो। और जब अल्लाह से डरोगे तो इसके माना ये है कि अल्लाह से डरने के बाद अगर कोई फजीलत है ईमान के बाद और तक़वा इलाही के बाद, तो फजीलत ये है कि सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा, ये फरमा देता सच्चे हो जाओ, सच बोलो, मगर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि सच बोलो। सच का फरमाया है बहुत अजीब है, और झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। यहाँ तक उलमाए अहले बैत ने लिखा है, उलमाए इस्लाम में, कि लाखों का नुकसान कर दे। अगर बात आ जाए किताबों में दिखा दूंगा ला कर, मैं किताब से आयतुल्लाह की पढ़ रहा हूँ इस बात को। लाखों का नुकसान कर दे, अल्लाह उसकी मदद करेगा मगर सच बोल दे। लिख लीजिएगा, लाखों का नुकसान कर दे, लाखों का, मगर सच बोल दे। ऐसा ना हो कि अगर सच बोल दूंगा तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा। इसलिए कि सच्चाई में ही दौलत मिलती है, झूठ से दौलत नहीं मिलती है, सच्चाई से। तो सच का लोग नहीं दिया है, सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है। तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि सच बोलो, सच के लिए एक अलग अल्लाह ने मेयार मुकर्रर करवाया है। अहादीस में जो सच का मेयार मुकर्रर किया वो एक हुक्म है, मतलब चोरी न करो, गीबत मत करो, झूठ मत बोलो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ये सब अहकाम है अल्लाह की। लेकिन ये कोई खुसूसियत है जिसका हुक्म दिया जा रहा है। साहिबान ईमान, अल्लाह से डरो, और डरना ही काफी नहीं है साहिबान ईमान, बल्कि सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चों के साथ मैं ये कहता हूँ, कौन ने फरमाया कि सच्चों के साथ हो जाओ? सच्चे क्यों ना हो जाओ? सच बोलना और है, सच्चों के साथ हो जाना और है, सदाकत और है। ये क्यों नहीं कहा कि सच्चे हो जाओ? तो सच्चे होने के लिए क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा। एक मिसाल दी गई, किसी साहब की बहुत तबीयत खराब हो गई, बीमार पड़ गए, हालत खराब हो गई,
घर और बेटे हुए। अब हमने कहा साहब क्या परेशानी की बात है? कि साहब या तो हकीम के साथ आप डॉक्टर बन जाएंगे। अब वो डॉक्टर जब बनाएगा या हकीम तो 2 दिन में तो नहीं बनेगा, तो सालों चाहिए, हफ्तों चाहिए, महीनों चाहिए। 2, 4, 10, 12 बरस 10 साल में डॉक्टर बनकर के तैयार हो जाए होता है, और हकीम भी 10 साल में। बशर्ते को वाला चीज़ है कि शिफा हो रही है नहीं, वो तो बात की बात, वो तो अल्लाह के इख्तियार में शिफा होना या ना होना। मगर ये नहीं कहा कि डॉक्टर के लिए जब हमको जो बीमार हुआ तो हमने कहा डॉक्टर बन जाओ। हमने कहा डॉक्टर मत बनो, क्योंकि जब तक डॉक्टर बनोगे तो 2 सूरतें हैं, या तो खुद मर लोगे या इत्तेफाक से सेहत हो जाएगी। लिहाजा मामला साफ नजर आएगा। लिहाजा आप उसका अकली मशवरा आप क्या देंगे? अगर आप समझदार हैं कहते साहब डॉक्टर तो मत बनो, हकीम मत बनो, मगर हकीम के पास चले जाओ, डॉक्टर के पास चले जाओ। जब डॉक्टर के पास चले जाओगे, हकीम के पास चले जाओगे, तो उसको पूरी हयात का तजर्बा है, वो पूरी हयात जो है इसी में सर्व किए हुए, वो जरा सी देर में आपको सही कर देगा। अल्लाह ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि सच्चे हो जाओ, बल्कि मैंने कहा कि सच्चे हो जाओ नहीं कहा, बल्कि मैंने कहा कि सच्चों के साथ हो जाओ। अब ये कौन से किस तरह के सच्चे हैं मालूम ये कि तलाश किए जाने अलिफ्लाम सालिकीन है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सालिकीन। ये अलिफ्लाम ग्रामर के एतबार से कोई खुसूसियत का है, खुसूसियत का अलिफ्लाम है, कोई ऐसा वैसा अलिफ्लाम नहीं है, अरबी ज़बान है। मअस सालिकीन तो एक होता है, हमने हमारे उस्ताद पढ़ाया करते थे, एक होती है खासियत और फरमाया, एक होता है खासा। खासा किसी एक हकीकत के साथ मखलूक होगा। खासियत वो सिफत होती है कि जो सब में पाई जाती है। मसलन मौलाना होना, तो मैं ये कहूँगा मैं ही मौलाना हूँ, तो फिर कहेगा आप क्या मौलाना है? आप तो बड़े बड़े मौलाना दुनिया में पढ़ेंगे। क्या मैं तो शायर हूँ, आप क्या शायर हैं? आप तो बड़े बड़े शायर दुनिया में पाए जाते हैं, एक से एक अच्छा शायर मौजूद है, आपसे बेहतर शायर मौजूद है। तो आप जब गौर करेंगे तो मालूम हुआ कि शायर होना भी ये खासियत है, मगर खासा नहीं है। डॉक्टर होना खासियत है, मगर खासा नहीं है। हमारे उस्ताद जो पढ़ाया मौलाना शाकिर साहब, मगर खासा वो है जो किसी एक हकीकत और एक शख्सियत के साथ मौजूद हो, यानी किसी दूसरे में न पाया जाता हो। कहीं और अगर आप तलाश करते फिरे तो वो बात किसी में न मिले। कोई आयतुल्लाह कोई बात कह रहा है, वो अपने एतबार से सच्चा है, उसने अपने ख्याल से जो बात कही वो सही कही, दुरुस्त कही, सही कही, वो सच बोलता है, तो अब ये सच्चा है। वो अपनी हयात में कभी झूठ नहीं बोला, वो जब तक जिंदा रहा सही बोलता रहा, तो हमसे क्या कहेंगे? सच्चा कहेंगे, सच्चा है। लेकिन कैसा सच्चा है? इसने सच तो कहा, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि जब कोई बात कही तो इत्तेफाक से वो ना हो पाई, अपने ख्याल में सही गई। तो सच्चा किस तरह का देखा जाए? उसके वाला अल्लाह ये बयान करना चाहता है कि अगर कायनात में चले जाओ, बड़े बड़े अल्लाह के मुकर्रम बंदे तुम्हें सच्चे नजर आएंगे, लेकिन आले मोहम्मद कायनात में ऐसे सच्चे नजर आएंगे कि ये जो कह देंगे वो होता हुआ नजर आएगा। ये अपनी जबान से जो निकाल देंगे वो होकर रहेगा। ये नहीं सोचे कि क्या है, दर्जी ने कहा था कपड़े लाएगा, तो अगर ना किया होता, अगर हमने बच्चों से कहा होता तो हम कह देते कि हाँ भाई कपड़ा भी दिया है, कपड़े भी दिया है। लेकिन या तो माज़अल्लाह पाकम रहम नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या तो शहजादी को ये कह दिया जाए तो तौबा किसी आम इंसान के लिए नहीं कहा जा सकता, उनका तो मकाम बुलंद है। लेकिन वो इस एतबार से कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं कहा। मुमकिन है कि आप देखिए इसको कायम जरूर है, समझदार लगना है। जब नहीं कहा था तो मुनाफिक खड़े होकर कह रहे, जब नहीं कहा था और कपड़ा नहीं दिया था फिर कहने की क्या जरूरत थी? लेकिन शहजादी जानती थी कि नहीं, अरे मेरा दरवाजा ऐसा है कि जो चीज मांग लूंगी वो मिल जाएगी। आज से कह रही हूँ कि कपड़े तुम्हारे दर्जी लेकर के आएगा, तो ये दुनिया भी दर्जी नहीं लेके आएगा। गल्ले गल्ले कोई दर्जी कपड़े
कपड़े लेकर के बल्कि कपड़े लगाएंगे वहां से आना इस बात की दलील है कि वहां से आना इस बात की दलील है कि ये जो कह रही है वो अल्लाह कह रहा है, वो ये नहीं कह रही है अल्लाह की आवाज है। रिजवान जन्नत नहीं लेकर के आता है कहना फैयाजुल हुसैन, हुसैन का दर्दी हूँ। ये भी नहीं कहा कि कुछ और में झूला जड़ाने वाला हूँ, नहीं, फैयाजुल हुसैन। इनके दरबार में अगर फैयाज भी बन जाता है तो उसका भी मकाम बुलंद हो जाता है। इनके दरबार का अगर फैयाज भी हो जाता है तो उसका मकाम बुलंद हो जाता है। एकाएक तो कोई दुनिया में भी हो जाए, दो चार कपड़े सी करके मोहम्मद आले हसन हुसैन पड़े मोहम्मद आले। तो इनका मकाम क्या है? ये जो कह देते हैं वो हो जाता है। ये जो कह देते हैं इमाम हसन सल्लल्लाहु अलैहि, देखिए ये है कोई आयतुल्लाह बड़े से बड़ा, आप बता दीजिए, बड़े से बड़ा आयतुल्लाह, बड़े से बड़ा रूहानी आनी, बड़े से बड़ा साहिब करामत, बड़ा मर्तबा है उसका, वली सल्लल्लाहु अलैहि उसकी कदरदान है। लेकिन ये नहीं है कि कोई अगर दलील मुनाफिक आए और वो औरत का भेद बदल करके बज़म में आकर के बैठ जाए इमाम की तहकीर और तदलील करने के लिए, इमाम को रुकवा करने के लिए, और इमाम ये कहते हैं कौन सी औरत नहीं आकर के मर्दों की बज़म में बैठ गया तो फौरन खड़े होकर कहते हैं मैं तो लेडीज जाए तुम लेडीज नहीं हूँ। यानी वो इमाम है कि जो मर्द को औरत बना देता है, औरत को मर्द बना देता है। ये इमाम की सिफत है कि जो मर्द को औरत बना देता है, औरत को मर्द बना देता है। मरा हुआ है कि मैं नमाज पढ़ा दूं, सुनते हैं तो ये क्या है कि नमाज पढ़ा दूं, क्या हाँ पढ़ा दीजिए, नमाज पढ़ाऊं, उसको तैयार कर दिया 5 रुपए दे करके। कैसे कैसे बेगरत थे, कैसे जलील थे, कैसे जलने वाले थे, जितना जलते रहते थे उतना ही रुसवा होते रहते थे। अरे एक बार नहीं समझ लिया होता, लेकिन जलील और कमीना आदमी जिसकी नस्ल खराब होती है वो 100 बार में नहीं समझता। बदबूदार है ये, बदबू आएगी तो उससे तो बदबू आएगी। पाक है कब? अगर पाक होता तो मान लेता कि भाई एक दफा डिब्बी खाइए, एक दफा शक्कर खाइए, तो होना था हो गया। लेकिन नहीं, हम तो हैं, हमारी नस्ल तो खराब है ये, लिहाजा जो करते चले आए हैं वो करते रहेंगे। तुम्हारी नस्ल खराब है, तुम जो करते आए हो वो करते रहोगे। हमारी नस्ल तैयब ताहिर है, जो करते आए वो करते रहेंगे। दलील करते रहोगे, हम उनके फदाइल जो बना के सुन करके सवाल दायरे करते रहेंगे, दुनिया भी बनाएंगे और आप बताइए कौन ऐसा सच्चा है? बताइए। ये हैं जिनके लिए अल्लाह ने ऐसे सच्चे अगर तलाश करोगे तो ये हैं सच्चे। इनकी जबान मेरी जबान है, इनका इल्म मेरा इल्म है, इनकी आंखें मेरी आंखें हैं, इनके कान मेरे कान हैं ये मादी शक्ल में इंसान, मगर हकीकत इनकी नूरे परवरदिगार आलम। आदमी बनाकर के तुम भेजा, इंसान बनाकर के तुम भेजा। पढ़ी आपने हदीस पढ़ी है बहुत बार, तुम 2 नबियों तो साबित हो गया तो वो हदीस है जो सबने लिखी है। अब कहता चलूं दरमियान में, अभी आपने बरादर मुअज़्ज़ज़ से सुना तो इतनी हदीसें जनाब सैयद अली हमदानी साहिब मुबद्दतुल खुदा रिज़वानुल्लाह अलैहि ने तहरीर फरमाई। आप जो है मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब देख लीजिए, आप निसाई देख लीजिए कि जिसने 6000 अहादीस फज़ाइल पंजतन पाक अलैहिस्सलाम में इकट्ठा किए, 6000 अहादीस
تیرہ ہزار احادیث مناقب میرے پاس موجود ہے. جو بھی ہے وہ مومن وہ اسناد شریف نہیں ہے، ہم تو ان سے ماننے والے ہیں. ارے الفضل ما شہیدت پہلا تھا، فضیلت وہ ہے جس کی دشمن گواہی دے. اگر مانتے ہوئے ان کی فضیلت کا اقرار کرے تو پھر کیا کمال کی بات ہے، مانتا ہی ہے. اور یہ دونوں شعر ہیں، ایک معاویہ کا ہے ایک مریاض کا ہے. درود پڑھے محمد علیہ دشمن گواہی دے. دشمن ان کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں. تو صداقت کیا ہے؟ صداقت یہ ہے کہ یہ جو کہہ دیتی ہیں وہ ہوتا ہوا لگ رہا. اللہ نے ان کو ایسا بنایا، کائے سے پیدا کیا ہے. میں نے ابھی حدیث عرض کی کہ کن تو نبیوں و آدم میں میں اس وقت نبی تھا جب آدم ابو بکر کے درمیان گھر بیٹھے بدل رہے تھے. انبیاء کی خلقت پانی سے اور مٹی سے ہوئی ہے. انبیاء کی خلقت عام انسان کی طریقے سے ہوئی ہے، مگر واہر عظمت کے پاس پیغمبر خدا محمد آگ و پانی و مٹی سے نہیں ہوئی ہے. آگ کی خلقت تو نور پروردگار عالم سے ہوئی ہے. اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا. یہ الگ ہے کہ جامع بشریت پہنا کر کے بھیج دیا. جامع بشریت کیوں پہنایا؟ جامع بشریت تو اسی لیے پہنایا کہ نور برداشت کرنا آسان نہیں. میں نے کبھی مثال دی تھی کہ تار بجلی کے لگے ہوئے ہیں، تو یہ کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. تار بجلی کے ہیں اور بجلی کی بھی قسمیں ہیں. 240 وولٹ کی بھی ہے اور 440 کی بھی ہے اور 1200-1300 کی بھی ہے. اور وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ جو واقعات آپ اخبار میں پڑھتے ہیں، اوپر کھڑا ہوا ہے کنکریاں ختم ہو گیا آدمی، مگر اس کا انتظام جو سائنسدانوں نے کیا کیا ہے کہ اس کے اوپر پلاسٹک چڑھا دیا. کہتے بھائی یہ پلاسٹک کا ہے چڑھا دیا. ارے یہ تو اس لیے چڑھا ہے کہ اگر ہاتھ لگ گیا تو وہیں خراب ہو جائے گا، جان چلی جائے گی. لہذا اس لیے پلاسٹک اس کے اوپر چڑھا دیا ہے تاکہ انسان مرے نہ. ارے اگر ڈائریکٹ نور پروردگار عالم اللہ ظاہر کر دیتا کوئی تو بے ہوش ہو گئی. محمد ہٹ گیا تو کتاب ہی نہیں لا سکتا. یہ ہے اللہ نے ان کو اگر بھیجا ہے تو جامع بشریت بنا تاکہ یہ خدمت کر سکے. قرآن کی آیت ہے 26 میں بارے کہ اللہ خود تو آئی جب خود نہیں آ سکتا پھر کیا کرے گا؟ ایسے ہی وہ کیسے تبلیغ کر دے گا آ کر کے؟ ایسی تبلیغ کر دے گا آ کے کھڑا ہو جائے گا. وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ منزہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسے لوگوں کو بھیج رہا ہوں جن کو جامع بشریت پہنا رہا ہوں، مگر ان کی حقیقت میری حقیقت سے ملی ہوئی ہوگی. آدم کی حقیقت میری حقیقت سے ملی ہوئی ہے. آدم کائے سے پیدا ہوئے تھے؟ اختتام حضرت آدم کائے سے پیدا ہوئے؟ روح سے پیدا ہوئے. جب میں آدم کو ہر طرح سے درست کر دوں اور اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدے میں جھک جانا. یہی ہے نا ویلا سب میں تو نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب روح پروردگار سے پیدا ہوتا ہے تو نبی اور پیغمبر ہوتا ہے. جب نور خدا سے پیدا ہوتا ہے تو امام ہوتا ہے. اللہ نے انہیں جامع بشریت پہنا دیا. اور جب جامع بشریت پہنا کے بھیجا تاکہ قوم کو ہدایت کر سکے، لوگوں کو بیان کر سکے، لوگوں کے مسئلے کو حل کر سکے. سمجھو یہ ساجدین کیا ہیں؟ تم جیسے نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے عالموں جیسے نہیں ہیں. یہ حجت خدا ہے، یہ وارث خدا ہے، یہ نور خدا ہے، یہ علم خدا اپنے سینے میں لیے ہوئے. ان کو دیکھو
सिद्दीक हैं। तुम अपने मुंह से किसी को सिद्दीक कह दो तो अपनी जबान पे कहोगे सिद्दीक। मैं 1000 मरतबा जो है सिद्दीक 1000 मरतबा कह दूं तो सिद्दीक थोड़ी हो जाएगा। अरे जिसको अल्लाह और रसूल सिद्दीक कहे वो सिद्दीक होगा। हम अपने मुंह से कह दे रहे हैं कि सिद्दीक तो सिद्दीक नहीं होगा, बल्कि जिसको अल्लाह सिद्दीक कहे वो हस्तियां कि जिनको अल्लाह ने जामे बशरियत पैदा करके कायनात की हिदायत दी। क्या कहें अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने की क्या माना है? मुताबात करो, उनकी पैरवी करो, उनके रास्ते पर चलो, उनकी बात मानो, उनकी कदर करो, उनसे मोहब्बत करो, उनकी इज्जत करो, उनके मकाम और रुतबे को समझो। और अगर ये नहीं करते तो तुम फिर मुसलमान कहलाने के लायक नहीं। कौन है? सिद्दीक है, सिद्दीक का ताहिरा है, ताहिरा, तय्यबा, हाजरा है। इन हर फर्द खानदान तय्यब, ताहिर, सच्चा। मौलाए कायनात कौन है? सिद्दीक अकबर। ये है सिद्दीक अकबर। इसको कह दो सिद्दीक अकबर, मगर सिद्दीक अकबर मौलाए कायनात की लाश है। सिद्दीक अकबर सिद्दीका कौन है? ये है जिनको रसूल कह, जिनके मकाम, जिन मंजिलत रसूल है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को इतना पहचानवाया है मोहम्मद पूरी जिंदगी वक्त कर ली। पहचानो मेरे अहले बैत क्या है। अगर इनको पहचानोगे तो फिर मेरे साथ मगर अगर इनको नहीं पहचानोगे तो मुसलमान नहीं है। जिसके दिल में इनका एहतराम नहीं है, जिनके दिल में इनकी कदर मंजिलत नहीं है, लाख दावा करें कि मैं मोमिन हूँ, मोमिन तो बात की चीज है, मुसलमान नहीं। ये इस्लाम है। शहादत की बात घर में आग लगा दी जाए, आग लकड़ियां जमा की जाए, दरवाजा जलाया जाए, उनकी वसी के गले में रस्सी डाली जाए, उनके घर में आग लगाई जाए। बीवी कह रही है घर में आग लगाओगे? छोटे छोटे बच्चे हम लोग से घर में कितने दिन हुए थे रसूल की वफात? क्या हुआ रसूल की शहादत के बाद? सिलसिला जुल्म और जौर शुरू हो गया। अर्ज करूंगा बीवी से क्या आपके दरवाजा जलाया गया? यहाँ आपका दरवाजा जल रहा है। बीवी ने मर्सिया पड़ा, सुबह ऐसी मुसीबतें पड़ी अगर दिनों को पढ़ते तो रात रोज में मर्सिया पड़ बाबा इतना सताया इतने बजाने मेरे ऊपर किए दिनों को पढ़ते तो रात में तब्दील हो जाते। बीवी आप कह रही है सिद्दीक कायना या नहीं? ये आज मेरा दरवाजा नहीं जल रहा है, बल्कि करबला में खैमों को जलाया जा रहा है। ये मेरे वारिस के गले में रस्सी नहीं डाली जा रही है, बल्कि मैं देख रही हूँ मेरे बीमार पोते, उनके हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में